Hi guys, we brought you another interesting topic, another interesting video, and this video will be on USA debt ceiling. ओके हम आराम से समझेंगे इजी वे आउट कि यूएसए डेट सीलिंग है क्या, प्रॉब्लम क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, इजी वे में समझेंगे। एंड एक पहले समझते हैं कि एक बेसिक फाउंडेशन रीच करते हैं, उसके बाद हम अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। Imagine you have a piggy bank, okay, and you save all of your money into that piggy bank. But why you are saving money? Because you require something, you wanted to buy something, but in order to buy something, that particular thing, you don't have enough money. But what you do now, you go to your dad and ask for some money. It's like you borrow some money. Your dad agrees, but your dad puts up a condition that he sets a limit, that beyond that limit you cannot borrow the money. Now understand, you are a US government. That piggy bank in which you are saving money is treasury. Your dad is US Congress. And the limit which your dad sets, that you cannot borrow money from above that limit, is nothing but your debt ceiling. Let us have a deep dive. The US government has a piggy bank called treasury. हर एक गवर्नमेंट का ट्रेजरी होती है. Now this treasury collects money from people in form of taxes. There are two types of taxes. थोड़ा सा मैं brief दे देता हूँ. Let us understand what is taxes. Taxes is a charge or a rate which is levied on public, और वहाँ से जो पैसा आता है और कैसे लिवाई करते हैं, ऑन इनकम और ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. दैट इज, इनकम पे जो लिवाई हो रहा है दैट इज डायरेक्ट टैक्स, और जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लिवाई हो रहा है दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज इनकम टैक्स, सॉरी, जीएसटी. इनकम टैक्स इज योर डायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स इज द टैक्स जिसका बर्डन यू कैन नॉट ट्रांसफर टू समवन एल्स. लाइक आपने इनकम कमाई है, उस पर जितना परसेंटेज टैक्स होता है दैट इज यू हैव टू पे. बट इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जिसका परसेंटेज जो आप बियर करते हो, लेवी होती है गवर्नमेंट, उसका बर्डन आप किसी और पे ट्रांसफर कर सकते हो. गिव यू एन एग्जांपल. जीएसटी हमारे इंडिया में प्रिवेल करता है एज इनडायरेक्ट टैक्स. सपोज यू गो फॉर अ मूवी, एंड मूवी का प्राइस, जो टिकट का हॉल की मूवी का प्राइस है, दैट इज 500 रुपीज, and it is also inclusive 100 rupees as GST. Suppose, give you an example. I don't know about the rate, but suppose 500 की टिकट में 100 रुपीस क्या है आपका GST. Now that 100 rupees which is included under that 500 rupees ticket, you are not giving directly to government. You are giving that 100 rupees, 500 rupees a whole, which includes GST, to theater owner. और theater owner की liability है now to pay the tax, that is 100 rupees as a GST, to the government on behalf of you. That means you have transferred your liability to someone else. That is indirect tax. But direct tax, like you have an income that you have earned, you have to get pay the tax. उसका बर्डन आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, दैट इज डायरेक्ट टैक्स. दोनों तरफ से गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, और वो जो पैसा आता है दैट इज स्टोर इन अ पिगी बैंक विच इज नोन एज अ ट्रेजरी. क्लियर? नाउ दिस टैक्स का जो पैसा होता है गवर्नमेंट यूज इन टू वेज. इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक बिल्डिंग रोड्स, हाईवेज, flyovers, dams, bridges, हॉस्पिटल, स्कूल्स, पेंशन, डिफेंस. ठीक है? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, पेंशन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है, लाइक पेंशन, सब्सिडीज, सोशल वेलफेयर स्कीम्स, ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है. तो गवर्नमेंट को इसको पैसा चाहिए होता है. Oftenly, government require more money than what is in the piggy bank. Okay, why? To pay these things, pension, defense, schools, etc. When government needs more money, it borrows from public by selling treasury bonds. समझना, ठीक है? So what are bonds? Bonds are nothing but acknowledgement of a debt. Okay, it is also a way of investment. आपको एक पर्चा मिल जाता है, उस पर लिखा होता है कि यूएस गवर्नमेंट, और ये आपका उसमें अमाउंट लिखी होती है. इट इज़ ऑल्सो ईजिली ट्रांसफरेबल, एंडोर्समेंट हो सकती है. अब समझो, इन इंडिया इफ आई गिव एन एग्जांपल, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इश्यूज ट्रेजरी बिल्स ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. यहाँ पे क्या काम करता है? यहाँ पे डिस्काउंटिंग सिस्टम काम करता है. आई गिव एन एग्जांपल. 25,000 मिनिमम होता है इंडिया में, बता रहा हूँ. सपोज गवर्नमेंट इशू 50,000 रुपीज का फेस वैल्यू का एक बॉन्ड, ट्रेजरी बिल.
गवर्नमेंट इशू एट द फेस वैल्यू जो उन्होंने किया था वो डिस्काउंट करके पब्लिक को बेचती है। 50,000 की फेस वैल्यू का बॉन्ड जो है वो गवर्नमेंट इन्वेस्टर्स को दे देती है 40,000 रुपीज में। अब ये जो बॉन्ड है इसकी एक मेच्योरिटी वैल्यू होती है, लाइक 1 ईयर 2 ईयर जो रिडेम्पशन हो जाता है। भाई अगर मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ गवर्नमेंट के उसमें बॉन्ड्स में तो मैं रिटर्न भी तो कुछ लाऊं कमाऊंगा ना। तो गवर्नमेंट कहती है कि 50,000 रुपए का बॉन्ड है, यू टेक दिस फॉर 40,000 रुपीज एट डिस्काउंट। ठीक है, और एक साल बाद आना। मैं एक साल बाद गया, मैं बोलता हूँ गवर्नमेंट लो एक साल बाद मुझे रिडम्पशन दो। ना गवर्नमेंट मुझे पैसा 40,000 रुपये नहीं देगी, मतलब वो मुझे फेस वैल्यू पे देगी, दैट इज 50,000 रुपीज। सो in India, the treasury bills or government bonds are issued at discount but redeemed at premium. And the difference between premium and discount is nothing but my profit. सिंपल सी बात, यहाँ पे 10,000 रुपीज। दूसरी कंट्रीज में ऐसा नहीं होता, दूसरी कंट्रीज में ऐसा भी हो सकता है बट कोई कोई कंट्री इंटरेस्ट भी देती है फिक्स अमाउंट। वो कहती है फेस वैल्यू 50,000 है, 50,000 पे इशू करेंगे और 10% आपका क्या होगा, ROI होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और एक साल के लिए होगा। ठीक है ना, 10% आप निकाल लो कितना होगा, वो आपको हम दे देंगे, बात खत्म। सिंपल सी बात, ठीक है ना। ये भी होता है। रीजन क्या है, वेन एवर गवर्नमेंट नीड मोर मनी टू फंड स्टफ दे कैन इशू treasury bonds, but how much they can issue, there is a limit which is set by a US Congress, and this limit or the money that US government can borrow from public is nothing but a debt ceiling। मुझे 15 करोड़ रुपए चाहिए, मैं यूएस गवर्नमेंट हूँ, ठीक है ना, 10 करोड़ रुपए मेरे पिगी बैंक में पड़े हैं, मुझे 5 करोड़ रुपए और चाहिए। यूएस कांग्रेस ने बोला हुआ है कि योर डेट सीलिंग इज 3 करोड़ रुपीज। दैट मीन्स इफ इवन आई वांट मोर मनी आई कैन नॉट गो बियॉन्ड बोरोइंग 3 करोड़ रुपीज। क्लियर। नाउ क्राइसिस प्रॉब्लम क्या है फिर, ठीक है ना। Sometimes government spend more money than it collects in taxes and it reaches ceiling limit very easily, but it is a problem. I give an example, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं ड्यू टू आई जस्ट टोल यू वो इतने ज़्यादा है कि टैक्सेस तो कम पड़ ही रहे हैं एंड इट ऑल्सो रीचेस दैट बोरोइंग लिमिट। ठीक है ना। नाउ गवर्नमेंट कैन नॉट बोरो एनी मनी बियॉन्ड इट्स डेट सेलिंग। तो प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है, अगर आपको प्रेजेंट में गवर्नमेंट को सस्टेन करना है तो गवर्नमेंट हैज ओनली अ वे दैट आप प्रायोरिटाइज करो उन खर्चों को विच आर मोर इंपॉर्टेंट और जो लेस इंपॉर्टेंट है उसको कट डाउन करो। ये करंट सिचुएशन है सस्टेन करने के लिए। बट गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कहाँ सुनेगी। तो गवर्नमेंट सोचती है व्हाई नॉट वी कैन इंक्रीज द डेट सेलिंग, बट दैट इज नॉट वेरी इजी इफ आई टेल यू, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डिबेट्स, लॉ पास होना चाहिए, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, worry people and economists and not good for economy. We will see why. Let us understand with the help of four charts कि अभी हो क्या रहा है, क्या प्रॉब्लम। मैंने आपको समझा दिया क्या होता है डेट सेलिंग और क्या चल रहा है। सो इसको इस चार्ट को ध्यान से देखो, ठीक है। दिस इज अ डेट सेलिंग इन बोरोइंग चार्ट। सो इफ यू सी दिस वाइट लाइन इज यूएस स्टैट्यूटरी डेट लिमिट, जो यूएस की कांग्रेस ने सेट किया हुआ है कि इससे ऊपर आप बोरो नहीं कर सकते पैसा। आपके पास टैक्स का पैसा है, खत्म कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। आप ये जो लाइन है ना, इस लाइन से ऊपर आप पैसा बोरो नहीं कर सकते। तो अगर मैं सितंबर 21 का आपको मैं सिचुएशन बताऊं, डेट लिमिट थी 28 ट्रिलियन डॉलर्स की। ठीक है, चलते चलते ये जैन 2022 में बढ़ के, ये शायद दिसंबर 2021 है, दिसंबर 2021 में ये बढ़ के 28.8 ट्रिलियन डॉलर्स हो गई। ठीक है ना। बट यहाँ पे ओवरशूट देखो, सॉरी सितंबर में इतनी हुई 28, फिर अक्टूबर नवंबर आई थिंक इस अक्टूबर के मिड में इतना हुआ 28.8, फिर जनवरी के आसपास दिसंबर में इट ओवरशूट टू 31.4 ट्रिलियन डॉलर्स एज डेट सेलिंग। यहाँ तक ये पहुंच गई और ये कांस्टेंट रही। ठीक है ना, ये अभी तक अप्रैल 2023 या अभी जो अभी चल रही है अभी तो कांस्टेंट है। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये ब्लू लाइन है, ये तो सीलिंग है, इससे बाहर नहीं जा सकते आप। पर ये जो ब्लू लाइन है इट शोज द यूएस पब्लिक डेट, कितना उन्होंने पैसा बोरो किया है। इफ यू सी इट इज इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, ठीक है, फिर भी लिमिट के अंदर है, नॉट हियर।
यहाँ पे गवर्नमेंट की करंट बोरोइंग्स इज टचिंग एट $31 ट्रिलियन। लिमिट इज $31.4 ट्रिलियन, $0.4 ट्रिलियन से पीछे है गवर्नमेंट, एंड इट इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रीचिंग। आई गिव यू एन एग्जांपल, दिस इज नॉट बहुत प्रॉब्लमेटिक है, आई विल शो यू अदर ग्राफ एज वेल। देखो, यहाँ पे प्रॉब्लम इसलिए है कि हम बोलते हैं ना कि कुछ हो चुका है और कुछ होने की संभावना है, दोनों गलत है। हम समझते हैं कि पूर्ण बहुमत सरकार इस बार नहीं आएगी इंडिया में, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट पे ये प्रिडिक्शन होता ही, ये अभी स्पेकुलेशन ही है, अभी ये हुआ नहीं है पक्का, इससे स्टॉक मार्केट में क्या होता है, फर्क पड़ जाता है। ठीक है ना, अभी ये हुआ नहीं है फिर भी फर्क पड़ रहा है, दैट मीन्स प्रिडिक्शन से भी फर्क पड़ जाता है। यहाँ पे ये हुआ नहीं है, अभी क्रॉस नहीं करा है, फिर भी यहाँ पे फर्क पड़ चुका है। मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इट्स अ गुड अमाउंट ऑफ क्राइसिस दैट कैन हैपन हियर, अगर वो क्रॉस कर जाए। ठीक है, रीजन आई विल टेल, लेट अस सी मोर थिंग। गवर्नमेंट $31 ट्रिलियन की क्या ले रखा है, डेट ले रखा है, बट गवर्नमेंट की जेब में पैसा कितना है, पिगी बैंक में पैसा कितना है, just $61 billion of cash left, just that is the cash which US government has, cash balance। अब मुझे को बताओ, आप बोरो कर रहे हो पैसा, आपने 10 लाख रुपए बोरो किया, 10 लाख थोड़ी ना दोगे, उसको ऊपर इंटरेस्ट भी दोगे, वरना बोरोवर पागल थोड़ी ना इन्वेस्ट करेगा। तो आपके पास $61 बिलियन रुपीज है, एंड यू हैव $31 ट्रिलियन ऑफ बोरोइंग, जिसको आपको रिडीम भी करना है फुल अमाउंट, और आपको इंटरेस्ट भी देना है। ठीक है ना, और इट इज नियरली लो, इफ यू सी दिस ग्राफ इट इज वेरी लो, इफ यू सी दिस ट्रेंड, यहाँ पे कितना इंक्रीज और सी कितना डाउनफॉल है। ठीक है ना, इफ यू सी द ट्रेजरी बिल चार्ट, अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट समझते हैं। ठीक है, बॉन्ड पे यील्ड मिलती है। ठीक है, यील्ड इज नथिंग बट रिटर्न, परसेंटेज ऑफ रिटर्न दैट एन इन्वेस्टर एक्सपेक्ट्स। ठीक है, यूएस गवर्नमेंट आर कंसिडर्ड द सेफेस्ट। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, जहां रिस्क कम होता है एज पर कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, वहां प्रॉफिट या रिटर्न भी कम मिलेगा। आप एफडी में पैसा लगा रहे हो, वहां पे रिटर्न कम होगा, बट आप इक्विटी शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हो, वहां पे रिटर्न ज्यादा होगा। बट एफडी में इन कंपैरिजन रिस्क इज लो, हाउएवर इन इक्विटी शेयर मार्केट रिस्क इज हाई। ओके, नाउ मैंने जैसे आपको बताया पिछले उसमें, कुछ हो चुका है और कुछ होने की संभावना है, दोनों लीथल है। ठीक है ना, जैसे ही लोगों को पता लग गया कि गवर्नमेंट इज सो नियर ऑफ ब्रीचिंग दैट सीलिंग लिमिट, लोगों को जो इन्वेस्टर्स है उनको तो डर लग गया कि भाई हमारा पैसा तो डूबेगा। तो पीपल आर फियरफुल एंड डिमांडिंग हायर रिटर्न्स। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे रिस्क ज्यादा एसोसिएटेड है, एंड वेयर देयर इज अ रिस्क पीपल एक्सपेक्ट हायर रिटर्न्स। है ना, वरना रिस्क नहीं होगा तो फिर सॉरी, अगर रिस्क रिटर्न ही नहीं होगा तो फिर रिस्क भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं ना। बट अगर रिस्क ज्यादा है तो हम रिटर्न भी ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे फिर, लाइक इन एफडीएन इक्विटी शेयर मार्केट केस, जैसे मैंने आपको बताया। जैसे पब्लिक को पता लगा कि ये पहुंचने वाली है, पब्लिक ने हाइयर डिमांड करी किसकी, रिटर्न की, जिसकी वजह से जो यील्ड प्राइस था, यील्ड मतलब जो रिटर्न देना होता है ऑन द बॉन्ड टू द गवर्नमेंट, वो बढ़ गया। अभी प्रॉब्लम कैसे है, देखो यहाँ पे आप देख रहे हो, इवन 0% यील्ड 0% भी है, बिकॉज इट इज द मोस्ट सेफेस्ट वे। बढ़ते 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 इट इज हाईएस्ट 6% नियरली। ये रिटर्न किसको देना है, गवर्नमेंट को देना है, पब्लिक को। गवर्नमेंट के पास खुद का पैसा नहीं है, $61 बिलियन ऑफ कैश है, 31 ट्रिलियन उन्होंने डेट उठा लिया है, जिसको रिडम्पशन भी करना है, जिसपे ये इंटरेस्ट भी देना है, और इंटरेस्ट कितना, ये बढ़ता जा रहा है। वाई? बिकॉज रिस्क इज एसोसिएटेड मोर, रिटर्न भी एसोसिएट मोर होगा। तो ये तो पानी में जाने वाली है गवर्नमेंट। लेट अस सी सीडीएस, इट्स लाइक अ, ये डेरिवेटिव होता है सीडीएस, क्रेडिट स्वैप के लिए। होता क्या है कि एक इन्वेस्टर जब अपना रिस्क स्वैप कर लेता है दूसरे इन्वेस्टर को, तो वो सीडीएस एक डेरिवेटिव होता है, दूसरे टॉपिक में, दूसरे इसको वीडियो में मैं अच्छी तरह कवर भी करूंगा। ठीक है ना, तो होता क्या है कि एज अ डेरिवेटिव इफ आई एम टॉक, इट्स अ स्वैप। मुझे अपना रिस्क हेज करना है तो मैं दूसरे इन्वेस्टर को वो अपना रिस्क हेज कर सकता हूँ, बट इट चार्जेस अ प्रीमियम। ठीक है, अब जैसे ये रिस्क इतना एसोसिएट यहाँ पे हो चुका है बॉन्ड के लिए, जो प्रीमियम की अमाउंट है वो भी बहुत हाई हो चुकी है। इवन द इंस्टीट्यूशंस आर डिमांडिंग हायर प्रीमियम,
इफ यू वांट इंश्योरेंस अगेंस्ट यूएस डिफॉल्ट। देखो सिंपल सी भाषा समझाता हूँ। यू इन्वेस्टेड इन सच अ सिक्योरिटी जहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, और यू इन्वेस्टेड अ मनी जहाँ पे रिस्क बहुत कम है। अब कहाँ डूबने का पैसा ज़्यादा है? जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है। रिस्क क्या है? पैसा डूबने का रिस्क है। अब जहाँ रिस्क होता है तो मैं इंश्योरेंस लेता हूँ, है ना, लाइफ इंश्योरेंस लेता हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस लेता हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि रिस्क है। वैसे ही मुझे इन्वेस्टमेंट में भी रिस्क होता है, मेरा पैसा डूब ना जाए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना रिस्क को हेज करने के लिए मैं स्वैप्स यूज करता हूँ, मतलब मैं अपना रिस्क को हेज कर लेता हूँ, सिंपल सी भाषा। अब मैं किसी दूसरे को अपना रिस्क दे रहा हूँ कि भाई तू मेरा रिस्क ले ले, ठीक है ना। अब वो रिस्क ऐसे तो नहीं लेगा, दे वुड चार्ज अ प्रीमियम, ठीक है। इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस भी जो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस होता है, वहां पे भी हम अपना ऐसे प्रीमियम पे करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात चल रही है कि जो प्रीमियम है दैट आर हाईएस्ट, एंड दिस इज अ बिग वरी, ठीक है ना। यूएस का जो बॉन्ड है, ट्रेजरी बॉन्ड है, इट इज अ वेरी सेफेस्ट मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, और उस पे इतना ज़्यादा यील्ड और प्रीमियम होना इज अ कंप्लीट ब्लडशेड, ठीक है। सो व्हाट इफ डेट सीलिंग लिमिट ब्रीच्ड, गवर्नमेंट वुड बी शट डाउन, खत्म हो जाएगी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट चलेगी नहीं। वाई? बिकॉज आपके पास इतना ज़्यादा डेट में आप फंस चुके हो, इतना ज़्यादा डेट ट्रैप में हो रहे हो कि आपको पैसा भी देना है, इंटरेस्ट भी देना है उस पर, यील्ड जो है जो बढ़ती जा रही है बिकॉज रिस्क ही ज़्यादा एसोसिएटेड है। कैश बैलेंस आपके पास $61 बिलियन रहा है, यू वुड बी शट डाउन, लाइक पार्क्स, म्यूजियम एक्सेट्रा शट डाउन हो जाएगा, और एम्प्लॉय को अनपेड लीव पे भेज दिया जाएगा। डिलेड पेमेंट फॉर पेंशन, सब्सिडीज, सोशल सिक्योरिटीज डिले हो जाएगी बिकॉज पैसा नहीं है। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस डाउन होगा, स्टॉक मार्केट स्टम्बल्ड हो सकता है, इंटरेस्ट रेट हाई होंगे एज आई शोड यू बिकॉज रिस्क ज़्यादा एसोसिएट हो जाएगा, और यूएस डॉलर की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड होगा। देखो, जब भी आप बोरो करते हो पैसा, तो आपके पास एक क्रेडिट रेटिंग होती है कि ए प्लस प्लस, ए है ना। तो ये आप दिखाती है कि आपकी क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है, आप पेमेंट कितना जल्दी फ्रिक्वेंट कर रहे हो। जैसे हमारे में सिविल होता है, वैसे ही कंट्रीज की गवर्नमेंट की भी क्या होती है, रेटिंग होती है, वो डाउनग्रेड हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि आप इतना ज़्यादा पैसा ले रहे हो अपनी डेट सेलिंग से, और आप रिस्क इतना एसोसिएट कर रहे हो, है ना। तो वो भी आपकी क्रेडिट रेटिंग पे इफेक्ट पड़ेगा। ग्लोबल इफेक्ट कैसे होगा ग्लोबल इकोनॉमी पे? इट विल वीकन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस। वाई? बिकॉज यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर कंसिडर्ड मोस्ट सेफेस्ट, ठीक है ना। और अगर डेट सीलिंग ब्रीच हो जाती है, इट विल लीड टू स्पाइक इन बॉन्ड यील्ड। वाई? बिकॉज रिस्क ज़्यादा, तो यील्ड या रिटर्न भी ज़्यादा होगा। कॉस्ट ऑफ डेट विल इंक्रीज नॉट ओनली फॉर यूएलएस बट फॉर अदर इंस्टीट्यूट्स एंड इंडिविजुअल ग्लोबली। सो कॉस्ट ऑफ डेट क्या होता है? इफ आई बोरो सम मनी, उस पर मुझे परसेंटेज ऑफ कुछ यील्ड देना है, दैट इज योर कॉस्ट ऑफ डेट, और वो इंक्रीज होगा। तो सिर्फ यूएस के लिए नहीं, बिकॉज यूएस डॉलर और यूएस पूरी कहीं ना कहीं ग्लोबली इम्पैक्ट करता है, तो वो पूरी ग्लोबल को इम्पैक्ट भी करेगा। हाउ इट विल, इट कैन इफेक्ट करेंसी एंड एक्सचेंज रेट। यूएसडी इज द वर्ल्ड प्राइमरी रिजर्व करेंसी। हम भी यूएस को एज अ करेंसी रख के अपनी आईएनआर प्रिंट करते हैं, रिजर्व में अच्छा पार्ट होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को मोस्टली यूएस डॉलर में लिया जाता है, तो यूएस इज लाइक अ प्राइमरी रिजर्व करेंसी। इफ सीलिंग ब्रीच्ड, देयर विल बी लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इन यूएसडी, बिकॉज उसकी वैल्यू गिर जाएगी, ठीक है ना, विच विल क्रिएट इकोनॉमिक चैलेंजेस टू द कंट्रीज दैट हेविली रिलाई ऑन यूएसडी। यूएसडी हम रिजर्व बहुत यूज करते हैं, एज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका में कंट्रीज यूएसडी यूज करती हैं, तो एज अ ग्लोबल इम्पैक्ट काफी होगा इफ यूएसडी वैल्यू डिक्रीजेस। स्पिल ओवर इफेक्ट्स क्या है? एवरी कंट्री इज इंटरकनेक्टेड विद इकोनॉमी। वाई? बिकॉज ग्लोबलाइजेशन। Now, selling breach have indirect impact. How? It will reduce US customer spending decreases. Like क्या होगा? जो US कस्टमर है, ठीक है ना, उसकी जो स्पेंडिंग होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, मतलब जो इंपोर्ट्स हैं दैट विल लीड टू अ ग्लोबल शटडाउन। सिंपल सी बात, ठीक है। That's it. So in this video, we have understood key how this US debt ceiling is just merely a havoc प्रॉब्लम हो सकती है। इट जो अभी जो दिख रहे हैं, पोजीशंस दिख रही है, विच शोज
दैट यूएस इज इन हाई डेट, और उसकी वजह से जैसे डोमिनो इफेक्ट होता है, ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा इन केस ऑफ ट्रेड, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, इंपोर्ट्स को इफेक्ट करेगा, और ग्लोबल जो इकॉनमी है उसको काफ़ी स्लो कर देगा. सो एज यूएसए इज कनेक्टेड और काफ़ी ज़्यादा रिलाय है, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, इट इम्पैक्ट्स एवरी वन. फॉर दिस वीडियो दैट्स इट, वी विल सी यू इन अनदर वीडियो. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe, and see you in the next video.